Okay, friends, very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last session, I had just finished the chapter number 3 with respect to theory and numerical. And today is the turn to discuss the MCQ. As you know, the MCQ plays a very much important role in your board examination as well as for the competitive examinations. So today I'm going to solve some MCQs, which is I said as a textual MCQ, and also had provided you some self-learning notes as well. I hope you had solved that self-learning notes and you will ask the doubts. But before that, let me discuss some of the MCQ which I had provided here. Whether you are able to see the textual MCQ in your mobile. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, fine. So we're going to solve questions one by one. So look at the first question. A masses of 3 wire of a copper are in the ratio of 5:3:1 and the length are in the ratio of 1:3:5. The ratio of their electrical resistance. Here we had provided the ratio of the masses and the ratio of the lengths. And we require to find the ratio of the resistance. So very first we'll start from the resistance. We had provided the ratio of the mass and the ratio of the lengths, and we want to find the ratio of the resistance. So let's find out the resistance in the form of mass and length. We'll find the resistance in the form of mass and length. Okay. Okay. So, okay, fine. Okay. So friends, we have the formula of the resistance. R is equals to rho L upon A. But we want to have this resistance in the form of mass and length. Anybody will tell me what to do? We want to have the mass and length in the picture. So we don't want the cross-sectional area. So anybody will tell me what to do? Multiplying numerator and denominator by L. Okay, multiplying the numerator and the denominator with the L. So that becomes rho L square upon volume. Cross-sectional into length is the volume actually. And as you know, density is equals to mass upon volume. So as a density is equals to mass upon volume, so I can say volume is equals to mass upon density. Here rho is not the density, friends. That is to be remember. Here rho is not the density. Rho is actually a resistivity. So assuming that the symbol for the density is D, so now I can write the formula of the resistance as a rho L square upon, in place of a volume I can write mass upon density. So it is a resistivity into density into length square upon mass. Now all the 3 wires are made up of copper. All the 3 wires are made up of copper. That's why resistivity and density will be remains the same for the all the 3 wires, because resistivity and density is depend on the type of material. For all the 3 wires, the type of material is a copper. So density, resistivity remain the same. That's why resistance proportional to L square by M. So this is the formula of the resistance. So now we want to find the ratio of the 3 resistance. So R1 is to R2 is to R3
is equals to, I can say, L1 square by M1, L2 square by M2, L3 square by M3. Now the length is in the ratio of 1:3:5. So squaring them, 1:3:5. So squaring them, because L square is there. So L1 square, L2 square, L3 square, so that is a 1 square to 3 square, 5 square. Mass is in the ratio of 5:3:1. So 5:3:1. So this ratio is comes out to be a 1/5:9/3, matlab 3 hoga, 25. Multiplying all the terms with the 5, multiply with the 5. 1/5 into 5, that is a 1. 3 into 5, that is a 15. 25 into 5, that is a 125. It is in the form of ratio. So when I multiply with the 5, it is automatically also divided because it is in the form of ratio. So it is not like that you have to multiply it and you have to divide by 5. So you just multiply the whole ratio. So automatically it is multiplied as well as divided. It is in the form of ratio. So you can multiply with 5 with all the three terms. So it will comes out to be a 1:15:125. So it is an important question. It was asked in the AI somewhere. So in the previous years AI में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था. क्या ये समझ में आया आपको फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Question number 2. A wire is uniformly stretched to make a area of a cross section 1/nth time. What will happen to its resistance? So whenever you stretch the wire, one thing is confirmed, that its volume remains constant. When you stretch the wire, its volume remaining constant. And you have to multiply and divide the resistance by the quantity which is given in the question. In this question, we had provided information regarding on the cross section. So what I will do, I will multiply and divide the equation of the resistance by the quantity for which the information is given. So here cross section information is given. So I had multiplied and divided this equation by the cross section. So it becomes a rho V upon A square. Now when you stretch the wire, neither the type of material nor the volume can be changed. Type of material remains the same, volume remains the same. So I can say R proportional to A square. So from that, if the area is reduced to n times, then the resistance will be increased to n square time. Why? Because okay, let's solve whole thing. Let's solve whole thing. So as a R proportional to 1 upon A square, so I can say R dash upon R is equals to reciprocal of that, A dash square, A square upon A dash square. Now the A dash is given as a by N. A dash is given as a by N, the whole square. So finally N square will be remaining. So what I can say, so the resistance increased to N square times. Is that clear, friends? So Yes, sir. in the same question, anybody will tell me if the radius of the cross section is reduced to n times. If the question is like the radius of a cross section is reduced to 1/n times, then what should be the answer? In place of a cross section, if there is a radius of a cross section that was mentioned, that was kind of what is written, then what should be the answer? सेम होगा ना? No. 1/n square. अगर यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि क्रॉस सेक्शन 1/n टाइम हो रहा है, उसके बदले रेडियस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन 1/n टाइम होता, तो व्हाट शुड बी द आंसर? n⁴. n⁴ no, n⁴ is the right answer. n⁴ is the right answer because what happened over there, r proportional to 1 upon r proportional to, it will be a 1 upon what is this? Okay.
Okay. So if there was a question with respect to the radius of a cross section area, so this result we will going to obtain. For that particular situation, the result will be this. And if the R proportional to R becomes 1 by n times, then it is n raised to 4 times resistance increased to n raised to 4 times. Is that clear to you? देखो R proportional to 1 upon a square तो मिला, right? अब A itself is equals to pi R square. तो A के बदले अगर आप pi R square प्लेस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो R पावर 4 हो जाएगा. तो R पावर 4 का मतलब n raised to 4 अगर आंसर आता, अगर ऐसा होता तो. Is that clear, friends? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Priyanshu is there? Priyanshu? Hardi? Hardi is there? Yes, sir. Okay. Question number 3. P and Q are the 2 points on the uniform ring resistance R. O is the center of the ring. If the part PQ of the ring subtend an angle theta at the center O of the ring, that is angle POQ is equals to theta. Wants to find the equivalent resistance of the ring between the point P and Q. So here in the question it was mentioned that there is a ring, the total resistance of the ring is a R, and here is the point P and Q, and angle formed here is a theta. So can anybody will tell me how to find the effective resistance between the P and Q? Sir, parallel connection, sir. Here, obviously, here you can see that the smaller arc and the bigger arc comes in the parallel combination. So if you want to find the effective resistance between A and B, what you need to do? You need to apply the parallel combination formula. So that means we want to find the R1 and R2 first. And then after we are able to solve this question. So for that, I repeat, we need to find R1 and R2 first. Okay. So we'll find the R1 and R2. Okay. So right, I am writing in the left hand side of the equation, left hand side of the page. Dekho, what is the total angle? What is the total angle of the whole circle? If you consider the whole circular region, what is the angle of that? 360. 360 माने 2 pi. pi. And it is mentioned in the question how much the resistance of the whole ring? पूरे रिंग का रेजिस्टेंस कितना? R. मतलब 2 पाई एंगल के लिए R है रेजिस्टेंस, तो थीटा जो एंगल है स्मॉलर आर्क का एंगल थीटा है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा? उसको मैंने R1 अज्यूम किया हुआ है. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द R1? R theta upon 2 pi. हाँ, ऐसा रिलेशन आप कब अप्लाई कर सकते हो पता है? एवरी टाइम यू कैन नॉट अप्लाई दिस काइंड ऑफ रिलेशन. Y proportional to X. हाँ, ये लीनियरली प्रोपोर्शनल हो ना तो ही ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हो. मतलब अगर रेजिस्टेंस एंड एंगल एक दूसरे के लीनियर प्रोपोर्शन में हो तो ही ये एस टाइप का आर्ग्यूमेंट हम कर सकते हैं. तो यहाँ पे ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? बिकॉज देखो, आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, बट लेंथ इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस. तो फाइनली
resistance proportional to length of the arc, but length of the arc is equals to angle into radius. मतलब वो length is proportional to the angle. Hence, I can say resistance proportional to angle, and that is why we can make this kind of argument. तो R1 मिल गया वापस से 2 पाई है ना, तो उसका रेजिस्टेंस आर, पूरा एंगल मतलब पूरा सर्कल का रेजिस्टेंस आर है। अब मुझे ये बताओ कि बड़ा वाला जो आर्क है उसका एंगल कितना होगा? 2 pi minus theta. या एंगल ऑफ द बिगर आर्क विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो 2 पाई के लिए अगर आर है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस फॉर द angle 2 pi minus theta, and that is we had assumed as R2. So what is the value of the R2? So it is a 2 pi minus theta into R upon 2 pi. So finally we got the R1, we got the R2, and the resistance between the P and Q point is the parallel combination of these two. So putting the values here, so RPQ is equals to R1, value of the R1 is equals to R theta upon 2 pi. Value of the R2 is equals to 2 pi minus theta into R upon 2 pi. And if you take the addition of these two, obviously ये दोनों का एडिशन है ना, वो तो टोटल रेजिस्टेंस आर ही हो जाएगा। आप अब करना उसका एडिशन, तो ऑटोमेटिकली अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वो आर ही आने वाला है। तो आर गेट कैंसल्ड, सो फाइनली इट इज अ 2 पाई माइनस थीटा into r upon 4 pi square. So this should be the answer. Whether this kind of option is there? Yeah, here it is. Option A is the right answer. You can see the option A. It is a good MCQ. Is it understood, friends? સર Yes, sir. બોલો બોલો. સર પેલો રિલેશન એકવાર ફરીથી સમજાવો ને, R is proportional to L વાળો. हाँ, okay. Can I, do you know R is equals to rho L upon A? Yes sir. So can I say resistance proportional to length of the wire? Yes. But here the length of the wire, that is equals to length of the arc, because R1 and R2 are the resistance of the two arcs. So here the length means length of the arc. But as you know, arc is equals to angle into radius. Angle is equals to arc upon radius. So arc is equals to angle into radius. The length of the arc proportional to angle theta, because radius for both the arc are the same. Radius for both the arc are same, because it is the same arc of the same circle. So radius is a constant for both the arc. So arc length proportional to angle. So R proportional to L, and we proved that the L proportional to theta. So combining these two things, so we'll get the R proportional to theta. Is that clear? Yes sir. Sir, Hello. sir, આ ક્વેશ્ચનમાં રેડિયસ અને રો આપ્યું છે એનો કોઈ યુઝ નથી. Nah, that is only for the confusion. We are not having any use of the radius here. Radius and radius per unit resistance per unit length, उसका use करके भी ला सकते हो, but that will becomes a slightly difficult one. So without that also you can easily solve this way, this question. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो, question number 4. तेरा मुझसे है पहले का नाता को, okay. So the question is, resistive wire is stretched till its length is increased by 100% due to the consequent decreasement in the diameter. Okay, fine.
What is the change in the resistance? So I had clearly discussed this kind of questions many times. So when you stretch the wire, so we already had discussed that in this kind of situation, you have to multiply and divide by the length. So it becomes a rho L square upon V. So when you stretch the wire, volume and resistivity remains constant. So R proportional to L square. So this is the relation for the length and resistance. So it is like a Y proportional to X square relation. So in this kind of situation, percentage change in X and percentage change in Y so friends, many times I had given these shortcuts. So whenever there is a Y proportional to X square relation is there. So whenever there is a Y proportional to X square relation is there, then for 0 to 8%, what should you do? Double. So answer is going to be get doubled. For the 10%, it will be a 21. yeah 21%. For the 20%, if you remember, 44. 44%. For 100%, it is a 300. 300. So this is in the physics. This kind of relation comes many times. So better to remember these shortcuts. 800. 800. Yeah. Somebody is. कौन बोले छे? Nandish Shah. नंदीश घना टाइम में आवाज आया. Okay. So here we had increased the length by 100%. So what is the answer for this? 300% should be the answer. Is that clear, friends? Is it okay, everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. If you want to have the method of this kind of question, so I had already solved this question somewhere. A wire is stretched to double its length. That kind of questions, 3 or 4 questions simultaneously I had explained in the same lecture. So on that lecture you will get the method as well. इसका method भी मैंने कराया हुआ है, देख लेना एक बार. Okay. Question number 5 is also the intelligent question. Question number 5. Question is what is the potential difference between the A and B? So we'll apply the Kirchhoff's law, applying the KSL, Kirchhoff's second law. We'll start our journey from the point A. हम point A से अपना journey start कर रहे हैं, तो वहां पे potential होगा VA. चलो, अब we are with the current. We are moving from A to B. We are moving मतलब हमारे जो thoughts है ना, उसको मैं A से B पर ले जा रहा हूँ. Kirchhoff's second law याद है ना friends? With the current IR negative, opposite to the current IR positive. With the current IR negative, opposite to the current IR positive. बैटरी का पॉजिटिव पहले आता है तो इक्वल्स टू के राइट साइड अगर लिखते हो तो ईएमएफ पॉजिटिव लिखना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो तो नेगेटिव लिखना है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट दैट इज वीए. अब विद द करंट है हम, तो क्या करेंगे? विद द करंट है तो क्या करेंगे? -2 × 1/4. अब बैटरी का पॉजिटिव पहले आ गया, तो मैं अगर इक्वल्स टू के राइट साइड लिखता हूं तो मुझे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, बट आई एम राइटिंग दिस इन द लेफ्ट हैंड साइड द इक्वेशन, so it will be a -1 volt. Is that clear? So once again with the current, once again -2 × 1/4, once again -2 × 1/4, and B पे अटके तो इसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VB. So once again starting from point A, that is why VA with the current -IR, पॉजिटिव कम्स फर्स्ट, इक्वल्स टू के राइट साइड पॉजिटिव, बट मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ही लिख रहा हूँ तो माइनस. वंस अगेन विद द करंट -IR एंड बी पे अटके, दैट्स व्हाई इक्वल्स टू VB. So now I can say VA minus 0.5 -1 minus 0.5 is equals to VB. So VA -2 is equals to VB.
So VA minus VB is equals to 2 volt. So potential between the A and B is a plus 2 volt. Between the A and B is a plus 2 volt. સર બી એન્ડ એ કીધું તો પણ 2 વોટ અને -2 વોટ માં કન્ફ્યુઝન ના થાય ना था ना जो if they had mentioned from between the B and A, then the answer should be a minus 2 volt. पहले A लिखा है तो VA minus VB, अगर पहले B लिखा होता तो VB minus VA मैंने किया होता. ओके ઓકે સર बिटवीन A and B मतलब VA minus VB, अगर between B and A होता तो मैंने VB minus VA किया होता. Is that clear? યસ સર Okay. Question number 6. Wire has a non-uniform cross-sectional area as shown in figure. अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक बुक कलेक्ट करना है ऑफिस से. वो मेरा मैसेज, मैंने आपको मैसेज भेजा होगा. So you need to collect one book, Kumar publication book you need to collect from the office. So आपको बुक कलेक्ट करना है ऑफिस से, तो आज के दिन में कलेक्ट कर लेना बुक. ओके સર ઓફિસ કેટલા વાગે સ્કૂલ ડી હશે? 6 o'clock. धरणीधर ब्रांच पे 2 o'clock से लेके 6:30 तक. सैटेलाइट में अभी जा सकते हो, लेक्चर खत्म होने के बाद 6:30 तक खुला होगा सैटेलाइट भी. सर आज ही या कल भी जा ही सकते हैं? कल जा सकते हो. चलो क्वेश्चन नंबर 6. A wire has a non-uniform cross-sectional area as shown in figure. A steady current is flowing through it. Then the drift speed in the of electrons is going from A to B. देखो, conservation of a charge says that whatever the charge enters from one cross-sectional area in some interval of time, the same charge will came out from the other cross-sectional area in the same interval of time. So that means a charge inside the conductor charge neither can be produced nor can be destroyed, nor can be stored. It will be remain same per charge per time. मतलब चाहे क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है या कम होता है, उसका जो करंट होता है चार्ज पर टाइम वो कांस्टेंट रहता है. हाँ, अगर जंक्शन बनता है तो जंक्शन से वो डिवाइड हो जाएगा. बट अगर कोई जंक्शन नहीं है, एक ही वायर है, तो उसका क्रॉस सेक्शन चाहे बढ़ेगा या घटेगा, जो करंट है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा. So always remember, according to the conservation of charge, current throughout the wire, irrespective of its cross section, throughout the wire, a current remaining constant. करंट कांस्टेंट रहेगा. अब देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है. So as we know, if you remember, okay, let's write down the formula of the current. Anybody knows the formula of the current in the form of a drift velocity? हमको अल्टीमेटली तो हमारा टारगेट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. तो कोई बताएगा मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी? નાવડી. हाँ. So the equation of the current in the form of drift velocity, you know, that is a Navdi. So current is equals to Navdi. So if you make the VD subject equation, so VD is equals to I upon nai. I nai to nai. So now current remaining constant, number density of the charge remaining constant. So obviously a drift speed is directly proportional to 1 upon cross sectional area. And if you moving from A to B, cross sectional area increases. That means that drift velocity goes on decreases. Is it okay, friends? યસ સર Okay. The resistance of a 10-meter long potentiometer wire is a 20 ohm. If you remember, the resistance of the potentiometer wire was given by rho into L. Rho here, the rho, this is the only theory in which the rho is not, this is the only theory in which the rho is not the resistivity. It is the resistance per unit length. So potentiometer wire का जो resistance है वो rho into capital L होगा.
वो दिया हुआ है कि 20 है, और यहाँ पे पर यूनिट मतलब उसका लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ 10 मीटर है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगा 20 डिवाइड बाई 10, तो वो हो जाएगा 2 ओहम पर मीटर। देखो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मुझे मिल गया। अब क्या है, सो वांट टू फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द 30 सेंटीमीटर। सो याद करो फ्रेंड्स पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, किसी को इक्वेशन याद है? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल का जो इक्वेशन था वो किसी को याद है? VL is equals to EMF into rho upon R plus rho L plus small r into the length of the wire, if you remember। यहाँ पे जो वोल्ट है बैटरी का वो 3 वोल्ट है, रेजिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमने डिराइव किया 2 ओम पर मीटर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई लगाया हुआ है क्या? या लगाया हुआ है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम का लगा, 10 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया हुआ है। पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस रो इनटू कैपिटल तो 20 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ पता नहीं है, दिया नहीं है, तो मतलब वो 0 लेंगे, और जो पॉइंट है सेपरेशन है पॉइंट के बीच का वो 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 होगा। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका सिंप्लीफाई करेंगे हम तो इट इज कम्स आउट टू बी अ 0.06 वोल्ट विल बी द आंसर। सो इज इट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। A cell supplies a current of 0.9 ampere through 2 ohm resistance and 0.3 ampere through 7 ohm resistance. What is the internal resistance? चलो कोई मुझे बताएगा कि अगर सेल को कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला करंट का क्या होता है? बहुत बार हमने यूज किया ये फॉर्मूला। अगर किसी सेल को आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके सर्किट क्लोज करते हो तो द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सर्किटरी will be equals to EMF upon capital R plus small r. That is known to you. So finally we can say EMF is equals to I into capital R plus small r. अब केस नंबर 1, केस 1 में ऐसा दिया हुआ है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर 2 ओम लेते हैं तो करंट 0.9 एम्पियर है। सेल तो वही का वही है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका EMF तो वही का वही रहेगा, बट अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर 2 ओम लेते हो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई ये जो करंट है ना वो 0.9 एम्पियर फ्लो होगा, इक्वेशन नंबर 1। और ऐसा भी दिया हुआ है कि अगर वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा के, अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7 ओम लेता हूँ, सेल तो वही का वही है, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF तो वही का वही रहेगा, बट अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस 7 ओम लेता हूँ तो उसका करंट डिक्रीज होकर 0.3 हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं? You just compare both the equations, and get the internal resistance of the cell. Is that clear to you? Can you do it yourself? यस। Is it okay? Yes, sir. Okay. Question number 9. What is the total current supplied by the battery in the circuit shown in the figure? देखो यहाँ पे बैटरी में से कितना करंट बाहर निकल रहा है वो मुझे फाइंड करना है। तो just we had discussed that the current from the battery can be given by EMF upon external plus internal resistance। यहाँ पे बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल बैटरी ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मुझे बैटरी का करंट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि बैटरी जिस 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया हुआ है उसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट में मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। चलो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए थे। सोच के बताओ कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बिकॉज वंस वी आर एबल टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस देन एंड देन वी आर एबल टू फाइंड द करंट एज वेल।
तो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कोई बताएगा सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? સર 9 ઓહ્મ અને 3 ઓહ્મ પેરેલલમાં છે આ સિરીઝમાં Wrong answer, because you can see the junction over. सर Junction 11/2 है वहां आ रहा पे। है, बोलो। 11/2 आ रहा है इफेक्टिव। Wrong। 2 एम्पियर नहीं होगा सर करंट? मुझे ये बताओ कौन से दो सीरीज या पैरेलल में है? સર 9 અને 6 સિરીઝમાં છે. हाउ कैन इट बी सीरीज इन सीरीज? 9 અને 11 रॉन्ग आंसर। सर 3 અને 3 और 6 6 पैरेलल सीरीज में। में. 3 and 6 आर इन पैरेलल। वो पैरेलल में है कशिश, बिकॉज देखो उसका एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है और ये दोनों सेम पॉइंट है। देखो शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट है ये दोनों, इट इज अ शॉर्ट सर्किट, मतलब ये पॉइंट एंड ये पॉइंट सेम पॉइंट ही है। मतलब इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करो या यहाँ पे कनेक्ट करो, वो दोनों सेम चीज हुआ। सो एज दे आर सेम पॉइंट्स, तो उसको यहाँ पे कनेक्ट करने के बदले वहां यहाँ पे कनेक्ट कर दो। अब सोचो कि ये 3 and 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? हाँ सर. तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि कोई सीरीज पैरेलल में है कि नहीं, तो नहीं मिले तो दूसरा स्टेप ये था कि कोई शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट है कि नहीं कोई, तो वो शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट को साथ में लेने का है। अगर उसमें भी अगर प्रॉब्लम हो, ऐसा भी ना हो सके, तो मतलब आपको व्हिटस्टोन ब्रिज अज्यूम करना है। व्हिटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व ना हो तो आपको सोचना है कि कुछ सिमेट्रिसिटी फॉर्म हो रही क्या। अगर सिमेट्रिसिटी भी फॉर्म नहीं हो रही तो आप सॉल्व कर सकते हो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके। और अगर ऐसा भी नहीं करना है तो आप इक्विपोटेंशियल पॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये सारा चीज आपको सिखाया है। देखो अब ये 3 and 6 आर इन पैरेलल, तो 3 into 6 9, 3 into 6 18, 3 plus 6 9, तो 8 मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, तो 18 डिवाइड बाय 9 हो तो मतलब क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा। तो 18, ये 3 and 6 आर इन पैरेलल, तो 3 into 6 18 डिवाइड बाय 3 into 3 plus 6 मतलब 9, तो 18 डिवाइड मतलब 2, इसका 2 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि 2 and 9 क्या हो जाएगा? इसका भी सीरीज. हाँ सीरीज, तो मतलब 11 होगा। हाँ. चलो 11 हुआ, और ये नीचे का 11 के साथ ऊपर का 11, पैरेलल. so what will be the effective resistance if two 11. resistance are connected in parallel? If two equal resistance are connected in parallel, then the effective resistance is reduced to half. N માટે for the n equal resistance, R by n effective for parallel. For the two equal resistance are connected in parallel, then effective equals to R by 2. So here 11 by 2. So now current flowing is equals to battery's voltage is a 11 volt, and divided by resistance we had found it is a 11 by 2. So finally answer जो आएगा वो 2 ampere आएगा। Is that clear friends? Is it understood friends? Yes sir. Okay, question number 10. A wire in a circular shape has a 10 ohm resistance. पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज अ 1 ओम, मतलब 1 मीटर के साथ उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज अ 2.4, मतलब ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2.4 ओम है। तो कोई मुझे बताएगा पहले तो ये ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्मॉलर एंड बिगर जो आर्क है वो दोनों के रेजिस्टेंस को पैरेलल में सोचना होगा। तो मतलब ये पैरेलल का इफेक्टिव तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, और वो हमको दिया हुआ है, वो कितना है इफेक्टिव करके 2.4। बट फ्रेंड्स क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि R1 प्लस R2 मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बोथ द एडिंग बोथ द आर्क्स, दैट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन एज अ 10 ओम। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो R1 into R2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2.4 into 10, तो क्या हो जाएगा? 24.
तो सोचो ऐसे कौन से दो वैल्यू है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 24 आ रहा है, 6 and 4. या तो जो स्मॉलर आर्क है उसका 4 ओम आएगा एंड जो बिगर आर्क है उसका रेजिस्टेंस 6 ओम आएगा। अब यहाँ पे पर 1 मीटर 1 ओम है, तो स्मॉलर आर्क का रेजिस्टेंस अगर 4 ओम है तो उसका लेंथ कितना होगा पर 1 मीटर 1 ओम? 1 ओम माने 1 मीटर, तो 4 ओम माने 4 meter. अगर बिगर आर्क का पूछा होता 6 meter. वैसे 6 मीटर। लेंथ ऑफ द आर्क ए बी पूछा हुआ है, कोड नहीं होना चाहिए, आर्क होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ द स्मॉलर आर्क ए बी विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर एंड अगर बिगर आर्क का पूछा होता तो 6 मीटर आंसर आता। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। हाँ सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 11। In the following circuit, the heat involves in the 10 ohm resistance is a 10 calorie per second. The heat evolves in the 4 ohm resistance is approximately. Chalo friends, it is a very good question. देखो ऐसा दिया हुआ है कि ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना, उसमें से हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है ना, वो 10 कैलोरी है पर सेकंड में। Assume that the current flowing from the 10 ohm resistance is I1 and current flowing from the this upper branch is assumed to be a I2. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों जो ब्रांचेस है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? Parallel. एंड पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो I1 इंटू R1, R1 जो है वो 10 है, इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2, बट R2 क्या है? R2 क्या है, मतलब ऊपर के ब्रांच का रेजिस्टेंस 9। 9 है। वेरी गुड, पूरे ऊपर का ब्रांच का रेजिस्टेंस 9 है। वो 9 है ना, वो 10 के साथ पैरेलल में है। 4 या 5 9 के साथ पैरेलल, 10 के साथ पैरेलल में नहीं है। वो पूरा मतलब 9 होके वो 9 पूरा होके वो 10 के साथ पैरेलल में है, मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस 9 ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा? I1 इंटू 10/9, इक्वेशन नंबर 1। चलो ये समझ में आया आपको? हाँ सर. हीट फ्रॉम 10 ओम रेजिस्टेंस, इसको मैं H1 बोलता हूँ। तो H1 इज इक्वल टू कहना इसे I1 स्क्वायर इंटू 10। देखो 10 ओम रेजिस्टेंस पे करंट I1 पास हो रहा है एंड हीट पर टाइम है। एक्चुअली जो हीट का फॉर्मूला है वो I2RT है, बट ये हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। हीट इन्वॉल्व्स नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, तो भी वो टी कैंसिल, टी लिखते हैं, चलो टी लिखते हैं, वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो I1 स्क्वायर इंटू 10T एंड हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 4 ओम रेजिस्टेंस। तो 4 ओम में से कौन सा करंट पास हो रहा है? इसको मैं H2 बोलता हूँ। तो 4 ओम में से कौन सा I2 करंट पास हो रहा है? तो I2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू टी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes sir. सर वो तो 10 कैलोरीज पर सेकंड दिया है, तो हम T की वैल्यू 1 रख सकते हैं। मतलब वो पर सेकंड क्या लिखा हुआ है कहीं पे? हाँ 10 कैलोरीज पर पर सेकंड, सेकंड। हाँ पर सेकंड, ये के लिए कैलोरी पर सेकंड दिया हुआ है। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड फ्रेंड्स। कैलोरी पर सेकंड का मतलब टी को लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पर सेकंड ही है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो अब मुझे ये बता दो कि H2/H1 तो फिर क्या होगा? तो 4 इंटू I2 स्क्वायर अपॉन 10 इंटू I1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू I2/I1 स्क्वायर। बट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज द I2/I1? 10/9. 10/9। या एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/9 का स्क्वायर, तो वो 100/81 हो जाएगा। तो 4/10 इंटू 100 डिवाइड बाई 81।
तो फाइनली फ्रेंड्स ये 81 अप्रोक्सीमेटली 80 है, 81 अप्रोक्सीमेटली 80 कह सकते हैं। तो ये क्या, ये 5/4 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 80 अगर लिखते हैं तो 24 जा 80, 25 जा 100। इज दैट क्लियर? 4 कैंसल, 4 कैंसल। तो क्या हुआ ये? तो आई, सर फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। क्या बोल रहे हो आप? हाँ बराबर है। तो ये H2/H1 मिला ना, H1 का वैल्यू वापस से कौन सा है? 10 है। तो 10 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल, तो क्या बचेगा H2 का वैल्यू? 5। 5 कैलोरी इन 1 सेकेंड। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? हाँ सर। यस सर। चलो सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो। 12 इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव लिए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें नए नए कंसेप्ट है। सारे क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट है, मतलब हर एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो जाए, इस टाइप का एमसीक्यूज लिए है। Two bulb of 220 volt and 100 volt are first connected in the parallel and then series and then parallel. Then what is the total potential, total power? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिया हुआ है कि विद द सेम सप्लाई, मतलब चाहे आप सीरीज में कनेक्ट करते हो या पैरेलल में कनेक्ट करते हो, आप जो सप्लाई देने वाले वो सेम ही है। वेदर यू कनेक्ट बोथ द बल्ब इन सीरीज और इन पैरेलल, मतलब सप्लाई सेम होना मतलब वोल्टेज सेम होना। सप्लाई का मतलब प्रोवाइडेड वोल्टेज, मतलब आप बल्ब को चाहे सीरीज में कनेक्ट करो या पैरेलल में कनेक्ट करो, वोल्टेज सेम देना है। अब आपको पता है कि पावर का बेसिकली इक्वेशन क्या है, तो हमने प्रूव किया था, हमने एक थ्योरी में लर्न किया था, डिस्कस किया था कि पावर का जो फॉर्मूला है VI। ये I²R भी है, VI भी है एंड V²/R भी है। बट यहाँ पे वोल्टेज एक कांस्टेंट है। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा? पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स दिस फॉर्मूला विल बी द बेस्ट वन, because as a V is constant I can say P proportional to 1/R। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशंस के रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूला है उससे पावर का फॉर्मूला एग्जैक्टली अपोजिट आएगा। मतलब अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रेजिस्टेंस का जैसे पैरेलल फॉर्मूला जैसा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर पावर फाइंड करना है रेजिस्टेंस से उल्टा, तो मतलब रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर आप पैरेलल में इफेक्टिव पावर फाइंड करना चाहते हो तो उल्टा सीरीज जैसा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स ये जो दो इक्वेशन है वो आपको लर्न बाय हार्ट करना है, मतलब ये एज अ शॉर्टकट याद रखना है। पावर के अंदर रेजिस्टेंस से उल्टा होता है, मतलब अगर बहुत सारे बल्ब आपको दिए हुए हैं और वो सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं तो आपको इफेक्टिव पावर के लिए पैरेलल वाला जैसा फॉर्मूला, मतलब कैपेसिटेंस जैसा सोचना है, कैपेसिटेंस जैसा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दो बल्ब है, दोनों का एक्चुअल पावर जो है ना वो 100 वॉट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आंसर आएगा? 100 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 100 का मतलब 200। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 200, मतलब ये हो जाएगा 50। या 50। तो सीरीज में इफेक्टिव पावर डेसिपेशन हो जाएगा वो 50 एंड पैरेलल में इफेक्टिव पावर डेसिपेशन अगर पूछते हैं
तो 100 प्लस 100 मतलब 200 वॉट होगा। तो यहाँ पे पहले सीरीज में है, उसके बाद पैरेलल में है, तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्या मैंने 13 क्वेश्चन करवा दिया है? देखो तो एक बार सोच के बताओ। याद है वो अलग अलग केसेस मैंने करवाए थे? हाँ सर। शॉर्ट सर्किट में है। हाँ, ये शॉर्ट सर्किट वाला है। देखो ABCDE, वो 6 पॉइंट लेना था आपको, याद है? हाँ सर, हाँ सर, दैट इज डन। ओके, हाँ हो जाएगा। चलो 14th वन। A ring of the radius r and the linear charge density lambda on its surface is performing the rotational motion about its axis perpendicular to its plane. If the angular velocity of the ring is omega, how much the current is produced? देखो फ्रेंड्स, शायद आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैं प्रूव कर दूं पूरा चीज। आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और सपोज के मैं एक पीरियोडिक टाइम लेता हूँ, एज ए टाइम पीरियोडिक टाइम लेता हूँ, तो रिंग एक बार घूमेगी, तो रिंग का जितना भी चार्ज है वो एक बार कंसिडर करना पड़ेगा। सो इफ I consider the time as a periodic time, then in that particular the time interval, how much the charge is going to be moved, how much the charge is going to be passed. So in the periodic time only one rotation completes. In that kind of situation, ring complete one rotation, मतलब कि रिंग का चार्ज एक बार घूमेगा, रिंग का पूरा चार्ज एक बार घूमेगा। So that's why the charge of the ring we should consider. But as we know, 1 upon periodic time तो frequency होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि if any charge q revolves with the frequency f, then its current produced by it is given by f into q। तो ये आपको याद रखना है। If any charge q revolving the frequency f, then the current produced by it can be given by f into q। यहाँ पे तो रिंग का चार्ज कितना है, तो यहाँ पे चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो चार्ज कितना होगा भैया? तो लैम्डा इंटू एल, एल माने रिंग लेंथ ऑफ द रिंग, लेंथ ऑफ द रिंग मतलब 2πr। अब ओमेगा के फॉर्म में लाना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π इंटू 2πr लैम्डा। तो 2π गेट कैंसल्ड, सो जो I का फॉर्मूला आएगा वो आएगा ओमेगा r लैम्डा। सो दैट इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 15. A uniform conductor of a resistance R is cut into 20 equal parts. चलो मुझे ये बताओ कि कोई वायर का 20 पार्ट किया है मैंने, तो कोई एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आएगा? वायर को अगर हम 20 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कोई एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1/20। ऑब्वियसली 1/20, मतलब हर एक पार्ट का 1/20, R 1/20 नहीं, R/20, R/20 आएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि वो जो 20 पार्ट है उसमें से 10 पार्ट्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, बाकी के 10 पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो जो 10 पार्ट को, तो सीरीज में सबका एडिशन होता है, सीरीज में सबका एडिशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आर सीरीज, तो R/20 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 इसका एडिशन होगा, कितनी बार होगा? 10 टाइम्स, तो वो R/2 हो जाएगा। और जो पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है R/20 वाले 10 पैरेलल में है, तो R/20 वाले 10 पैरेलल में, तो याद है पैरेलल में तो ये आपको पता होगा कि रिड्यूस बाय n टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स पैरेलल में तो रिड्यूस बाय 10 टाइम्स, तो इसका हो जाएगा R/200। अब ये दोनों का क्या करना है, तो लास्ट में ऐसा दिया हुआ है कि नाउ इफ दिस टू कॉम्बिनेशंस आर जॉइंड इन द सीरीज, मतलब ये दोनों लास्ट में सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर ये दोनों लास्ट में अगर सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन दोनों का हमको एडिशन करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट में ये दोनों कॉम्बिनेशंस सीरीज में है। तो इसका एडिशन करें तो R/2 प्लस R/200, तो कैन आई से इट इज R/202? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि R/202? इज दैट क्लियर? ऐसा कह सकते हैं, यस और नो? यस सर। क्या यस सर यार, क्या क्या यस सर? ऐसा होता है कभी? मतलब ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता है, अब एलसीएम लेना सर पड़ेगा। मतलब एलसीएम तो 100R प्लस R अपॉन 200 होगा ना। हाँ, तो 101R/200, इज दैट क्लियर? इज इट ओके? Yes, यस sir. हाँ सर सर। So this will be the answer. Okay. So question number 16 पे आते हैं. A hydrogen atom, the electron is moving in the circular orbit of the radius of 5.3 into 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म्ड बाय इट। देखो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई चार्ज Q F फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व हो रहा है तो उसका करंट कितना होगा, F इंटू क्यू। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो F इंटू ई। या ये Fe पर से याद आया कि फ्रेंड्स आपको फीस भरना है। अगर फीस बाकी है तो आप जब ऑफिस में ये नोट्स कलेक्ट करने के लिए आते हो तो फीस अगर 12th का बाकी है तो वो आपको पे करना है। ओके, तो एक हाँ सर। एटलीस्ट पे करना है 10,000 का। अगर पे कर दिया है तो दिक्कत नहीं है, नहीं पे किया है 12th का एक भी फीस तो अभी 10,000 एटलीस्ट पे करना है आपको। तो I इज इक्वल टू एफ ई। ओके, सो यहाँ पे तो रिवॉल्यूशन का फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है बट वेलोसिटी दिया हुआ है। तो सर्कुलर मोशन में आपको पता होगा कि R इज इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ओमेगा वापस से कह सकते हैं कि 2 पाई एफ है। तो इन प्लेस ऑफ एफ आई कैन राइट, इन प्लेस ऑफ एफ आई कैन राइट वी अपॉन 2 पाई आर। सो करंट इज इक्वल्स टू एफ इंटू ई, मतलब वी इंटू ई अपॉन 2 पाई आर। यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज अ शॉर्टकट। आप इस फॉर्मूला को एज अ शॉर्टकट याद रख सकते हो। अगर कोई v वेलोसिटी के साथ कोई सर्कुलर मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका करंट इतना फॉर्म होगा। यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका रेडियस भी दिया हुआ है सर्कल का। तो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, यू कैन डू इट योरसेल्फ। You are given n identical resistance 17, each of the resistance are on. Now they are firstly they are connected to obtain the maximum resistance, and then after it is connected together in to form the minimum resistance. And what is the ratio of that maximum minimum? तो फ्रेंड्स ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी है एक न्यूमेरिकल में। तो अगर मैक्सिमम लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सीरीज में n टाइम्स इंक्रीज होता है। अगर मिनिमम आपको रेजिस्टेंस लाना है तो आपको सबको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो R बाय N हो जाएगा। अब इसका रेशियो मुझे फाइंड करना है, तो R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम, दैट इज कम्स आउट टू बी n स्क्वायर बाय 1। सो ये कर सकते हो आप। ओके, 18th क्वेश्चन। क्या मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है, यस और नो? क्या ये 18th टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाया है, यस और नो? हाँ सर। इसको 180 डिग्री याद है, इसको 180 डिग्री रोटेट करना है। एक फ्लिप करना है। ब्रांच को 180 डिग्री रोटेट कर दो तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। A current density is given, electric field is also given, and we wants to find the resistivity. फ्रेंड्स यहाँ पे करंट डेंसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। कोई रिलेशन है हमारे पास करंट डेंसिटी एंड J एंड E के बीच में?
तो याद करो वी हैव द रिलेशन। आइजा हाँ नहीं, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, बट हमको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो मेक द रेजिस्टिविटी सब्जेक्ट को इक्वेशन, सो इट बिकम्स E बाई जे। रो को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं तो इट इज E बाई जे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, करंट डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। देखो ये बताओ कि क्या 20 टाइप का क्वेश्चन हो गया है? देखो तो हाँ सर, इज इट डन? यस सर। Yes, sir. और ऐसे 21 पाउत आ रहे भी है सर। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बोलो, किसी को कुछ पूछना है? ओके 20 नो सर। n identical cells are connect of EMF E and internal resistance R are connected in parallel with a capital resistance capital R. Then what is the current flowing from the resistance R? तो फ्रेंड्स हमको पता है कि अगर एक बैटरी है, ओनली वन सिंगल बैटरी, तो करंट का फॉर्मूला EMF अपॉन R प्लस R है। बट इफ देयर आर मैनी सेल्स इन द कॉम्बिनेशन, तो ये फॉर्मूला में आपको E के बदले E इफेक्टिव फाइंड करना है और R के बदले R इफेक्टिव फाइंड करना है। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स के n नंबर ऑफ इक्वल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, सबका EMF E है, और ऐसे n सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आइडेंटिकल है, तो उसका इफेक्टिव EMF क्या होगा? સર ફરીથી સમજાવો ને, લેટ થયું હતું. हाँ 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 हाँ। So am I audible to you friends now? Sir, screen sharing પણ બંધ છે. Okay. तो क्या फ्रेंड्स अभी आपको दिख रहा है कुछ? Yes, sir. હા સર. Okay. Now tell me, if n number of cells are connected in parallel, having identical cells, so what is the net EMF? बोलो, पैरेलल में नेट EMF क्या होता है? E का E रहता है फ्रेंड्स। अगर n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो इफेक्टिव EMF E का E रहेगा। बट जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो R बाई N हो जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इट विल कम्स आउट टू बी NE अपॉन, it is comes out to be a NE upon NR plus small r. So that will be the current flowing from the resistance. Is that clear, friends? Is it understood, friend? Yes, sir. Friends, ये 22nd is a very important, it is a very good question. फ्रेंड्स आपको पता होगा कि करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन J डॉट डी है, एंड अगर J कांस्टेंट है तो द फॉर्मूला वाज J डॉट A, so I equals to JA cos theta, where theta is the angle between vector J and vector A. अब वेक्टर A कौन सा है? सो फ्रेंड्स वेक्टर A कौन सा लेने का है? तो फ्रेंड्स ये है आपका क्रॉस सेक्शन, वो मतलब ऐसा है कि यहाँ पे 60 एंगल फॉर्म रहा है, बट क्रॉस सेक्शन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर J. करंट डेंसिटी इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि J एंड A के बीच में कितना होगा? 30.
तो दैट इज टू बी नोटेड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यही नोट करना है। तो अगर जे फाइंड करना है तो इज इक्वल टू आई बाई ए कोस थीटा। तो आई क्या है, तो आई 2 एम्पियर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड कोस थीटा मतलब कोस 30 होगा, यहाँ पे कोस 60 नहीं आएगा, कोस 30 आएगा। एंड कोस 30 क्या होता है, √3/2 होता है। कोस 30 मतलब √3/2। ओके, एक स्टेप में ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2/10⁻⁻⁴ कोस 30 2/√3। तो दैट इज द आंसर इज कोस 30 क्या होता है फ्रेंड्स, √3/2। हाँ √3/2। तो ये हो जाएगा 4/√3 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। So it is a good question, very intelligent question. Question number 23rd. The potentiometer circuit shown in figure, the balance length AJ is equals to 60 centimeter when the switch S is open. Now the switch S is closed and the balance point and the resistance 5 ohm connected in the parallel and the null point is found to be as a 50 centimeter. What is the inter resistance? तो फ्रेंड्स याद है आपको इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो if you remember, that was the formula to find the inter resistance. External resistance जो कनेक्ट किया हुआ है 5 ohm है। When the switch is open, the null point length was a 60 and 6 close करने के बाद वो 50 है। तो ये 60 - 50 10 डिवाइड बाय 50 मतलब 1/5 हो जाएगा। तो 5 into 1/5 मतलब 1 ohm हो जाएगा। So internal resistance here is equals to 1 ohm. Is it clear friends? क्या आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके 24 या 24th क्वेश्चन को देख लो। तो फ्रेंड्स 24th क्वेश्चन में आपको ए एंड बी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने वहां से टर्मिनल निकाल दिए। तो अब देखो कि ये जो 2 and 2 है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है। सीरीज तो 2 का सीरीज क्या होगा, 4 सर आपण करायला हाँ इस टाइप का भी मैंने कराया था। तो फिर आपको ऐसे जाने का है, याद है आपको, ऐसे जाने का है। 2 सीरीज यस सर 4 पैरेलल में 2 हो जाएगा, वापस से 2 सीरीज में 4 पैरेलल में 2 हो जाएगा, 2 सीरीज में 4 पैरेलल में 2 हो जाएगा, 2 सीरीज में 4 and 2 लास्ट में 4 and 2 पैरेलल में। तो 4 into 2 upon 4 plus 2 6 2 3 are 6। तो 4/3 आंसर आ जाएगा लास्ट में 4/3। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर ओके 25 क्वेश्चन। What will be the time taken by the electron to move with the drift velocity from end 1 to end 2 of the copper conductor of the 3 meter length, where the current is equals to 3 ampere and cross sectional area is given, number density is also given. Friends, time find करना है। तो as we know, speed is equals to distance upon time. तो फ्रेंड्स टाइम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। अब मेरे पास डिस्टेंस तो पता है कि 3 मीटर लेंथ है उसका, तो डिस्टेंस तो 3 मीटर है ही, डिस्टेंस तो उसका लेंथ ही है, बट उसके पहले मुझे वीडी फाइंड करना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब स्पीड फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि करंट दिया हुआ है, करंट इज गिवन, तो इज देयर एनी फॉर्मूला रिगार्डिंग विद द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? यस वी हैव, I is equals to NA VDE. So very first you can find the drift velocity by this formula, I upon NAV, NA। तो I दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो पता ही है 1.6 10⁻19। So you just find out first the drift velocity and put the value of the drift velocity in the previous equation. You got the time interval as well. आपको टाइम भी मिल जाएगा। Is that clear friends? Okay, last one.
at what temperature would be the resistance of the copper conductor is double than the 0 Celsius? Alpha is given. Friends, if you know, we are only having a one equation correspondent to the alpha. RT0 is RT is equals to RT0 1 plus alpha theta T minus T0, if you remember. तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि कौन से टेम्परेचर में जीरो टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है उससे डबल हो रहा है. तो here it is mentioned that the resistance is doubled than whatever it is at the 0 Celsius. अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, नहीं टेम्परेचर फाइंड करना है. वी विल कंसीडर द रेफरेंस टेम्परेचर एज अ 0 सेल्सियस. तो रेफरेंस मैंने 0 कंसीडर कर दिया है. R0 गेट कैंसल्ड, तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी. तो अल्फा इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 मतलब 1. तो अल्फा का टी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है. तो टी का वैल्यू जो होगा वो 1 अपॉन अल्फा होगा. अल्फा का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, मुझे वो टेम्परेचर फाइंड करना था और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है. तो 1 अपॉन अल्फा करो तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा. 1 अपॉन कुछ अल्फा का वैल्यू है 3.9 10 पावर -3. बस तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द आंसर. इसको जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द आंसर. तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डिग्री में. हाँ, तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा एंड डिवाइड बाय हो जाएगा 3.9. तो 250 के आसपास, 256 probably 256.4 Celsius should be the answer. Is that clear friends? यस सर. तो फ्रेंड्स मैंने ये अलग अलग हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आ जाए ऐसा एक नोट्स मतलब एमसीक्यू का था, वो खत्म हुआ. तो अभी आपके डाउट्स आपको पूछना है बट वो हम अब कल डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स व्हेन वी मीट टुमारो एट द टाइम प्लीज ब्रिंग सम डाउट्स फ्रॉम द सेल्फ लर्निंग and then after we start the 4th chapter as well. You can collect the Kumar publication Darpan book from the office till 6 o'clock. और ये तो फीस पे कर देना वहां पे. સર बोलो. સર આપણે તમારી જે સેટેલાઇટ જે ટ્યુશન છે ને એડ્રેસ શું છે? समान कॉम्प्लेक्स अपोजिट सत्यम मॉल 231 नंबर. સમાન કોમ્પ્લેક્સ अपोजिट सत्यम मॉल 231 नंबर. ઓપોઝિટ સત્યમ મોલ. हाँ, नंबर 230. ઓકે સર, થેન્ક યુ. तो फीस अगर बाकी है तो फीस पे करना है आपको 10,000 वहां पे. ओके, तो आज का सेशन मैं यहाँ पे अभी खत्म कर रहा हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.